When I was invited to speak here, I wasn't quite sure why I've been invited. And I thought it's obviously because Mr. Chidambaram is short on time, so they need a kind of filler. तो हर चीज़ में थोड़ा फिलर चाहिए होता है ना टाइम वाइम लगाने के लिए. All I know is that there are three very good reasons why I should not be speaking today. One is that I'm not an economist, and that's a serious reason. Because budget is not merely about expenditure, how much you spend on this or that. Budget is actually seriously about fiscal policy, it affects your monetary policy and so on. So economists should be speaking, and I sorely miss a serious economist on this panel, and I can't substitute for that. Second, at least Mr. Chidambaram has the qualification of made the budget of this country. I don't remember making budget for my own family ever. So, what qualification do I have to speak on these things? Third, this qualification that I have is that I have not even remote connection with NSUI. All I remember is that when I used to be a student in this university, which is 1981, someone was courageous enough to start NSUI in JNU. You had to be very courageous to do things of that kind in those days, when the entire spectrum was shades of left. And we belonged to one of them. I belonged to an organization called SYS, Samta Yuvajan Sabha, a democratic socialist organization. So this friend of mine came and said, who I knew very well. He's a very senior leader of TMC these days in Bengal. He came to me and said, I've come to, you are my friend, so I've come to ask you for vote. I said, तुम्हें तो नहीं दूंगा और किसी को भी दूंगा. He said कि, अरे यार, मुंह से तो बोल दो, मत देना. मुंह से तो बोल दो कि दूंगा, मैं तुम्हारे पास आया हूँ. मैंने कहा नहीं, तुम्हारी NSUI को तो नहीं दूंगा और किसी को भी दे सकता हूँ. So that's the third reason why I'm disqualified to speak today. But since I'm here, all I'll do is that I'll make 2 or 3 general remarks and then say something about agriculture, something I've followed carefully. For the last 11 years, we followed the agriculture part of the budget. We do an analysis with the help of some economists, some friends. We do a commentary, I write articles on just that tiny bit. तो मैं उसके बारे में बात कर दूंगा ताकि वो छोटा सा हिस्सा है जो मुझे आता है, लेकिन उसके बेसिस पे आप ओवरऑल कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते. Of the 3 general comments that I want to make, first pertains to the fact that the nature of budget speech has undergone a tremendous transformation in the last 7-8 years. When he was the finance minister, you used to make very boring speeches because in your speech you actually mentioned figures. Because budget technically is a statement of income and expenditure. So what should a budget speech be? In a budget speech, you are normally required to say, I'm going to earn money from A, B, C sources. I'll earn this much. This is my total income. And I'm going to spend it on X, Y, Z and so on and so forth. So people like Dr. Manmohan Singh, Mr. Chidambaram used to make boring speeches. I'm going to spend these many crore rupees on this. At the end of the speech, I knew what the budget was. I liked it, sometimes I disliked it, but I knew what the budget was. The lovely thing about Nirmala Sitharamanji's budget is at the end of her budget speech, you do not know what the budget is. Honestly. That's a weird part of it, and I experience it year after year after year. So initially it was a statement of economic policy. Then it became a statement of economic vision. Every year she comes up with, she has this thing of 10 engines of growth, 5 missions, 10 goals, 5 commitments, some such thing. And none of this has any reflection in the tables of the budget. For heaven's sake, a budget is a table. Budget is not. I know he has to leave, so I understand. For heaven's sake, a budget is a table. आपको कोई कहे यूनिवर्सिटी का बजट पेश कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर फिर स्कॉलरशिप कितनी होंगी, सर कोई नए हॉस्टल आएंगे नहीं आएंगे, आप So thank you, Mr. Chidambaram. I knew he had to leave. Therefore, what we did was we had his question and answer session first, so that because he has to leave for something important. So if you have a university budget, what would you say?
how much is the overall money the university has. We need more hostels, maybe we need more girls hostel. Are you going to make more hostels? And how much money are you going to give for that? What about scholarships? Can we expect a raise in scholarship? Things of that kind. That is what a budget is. So someone should come and tell you, we have this much of grant for the university, we have this much of committed expenditure, and for the following things we are going to increase expenditure, and in order to do so, we are going to cut the following expenditure. This is what the budget is. If someone were to say, we want to take JNU to new heights, all right, thank you, sir. Then say, we would make JNU in the best university of this country. Lovely, sir. Best of the universe, even better. We would get Indian spirit in JNU. That may have been sorely missing. Thank you very much for bringing it. And then more of this and more of this, और ये चलता जाए, एक गुब्बारा, दूसरा गुब्बारा, एक आतिशी, एक फुलझड़ी, ये सब चलती जाए, और आखिर में वो कहे बजट स्पीच पूरी हो गई. मुझसे सर ये क्या कर दिया आपने? बजट कहाँ है इसमें? This is exactly what happens in the budget speeches for the last 7-8 years. You get one announcement, one jumla, and there are no figures. Fortunately, there were two figures in budget speech this time. There was a figure of how much budget deficit, 4.4%, and the one figure that the minister was very keen to announce, namely income tax slabs. I'll come to that. इसके अलावा कोई figure नहीं. And the other thing that we have learned is that things which are announced with huge fanfare, there is no amount. I'll give you one example. The finance minister announced a scheme for agriculture, because I track agriculture carefully. उन्होंने scheme announce की, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना. नाम तो सुंदर है भाई, नाम तो अच्छे बनाते हैं, मानना पड़ेगा. So मैंने किसी से कहा कि यार एक बार जब, because once the budget speech ends, within 1 minute they upload the entire document, and document has all the tables. So मैंने कहा यार इस योजना के लिए amount कितना है देखो. It is now what, 1 week after the budget is over? We still do not know if 1 paisa has been allocated to this speech, to this particular item. तालियां पिटवा ली, 1 पैसा नहीं दिया इस स्कीम के लिए. कहीं होगा, बाद में कुछ चीजों को जोड़ जाड़ के बता देंगे कि ये हो गया. Then why are you making this announcement in the budget? You could make it on any Monday. आप किसी भी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दीजिए. In a budget you are required to give me income and expenditure. Sadly, that has been missing in the budget. That's the first point I wanted to make. Second point was, and this should concern many of us here because we are students of Indian society, we look at data. The quality of economic data and the figures being presented, that has undergone a serious decline over the years. हिंदुस्तान की एक अच्छी बात थी कि सरकार अच्छा काम करती थी या बुरा काम करती थी, आपको बता देती थी कि उसने क्या किया, और आप सरकार के फिगर से ही सरकार की आलोचना कर सकते थे. The quality of our statistical database has been extraordinarily good. All over the world we've been praised for that. और सरकार को पसंद आए या ना आए वो डेटा तो रिलीज होता था. अब क्या होता है, जो डेटा सरकार को पसंद नहीं आया वो रिलीज ही नहीं होता. So you see this, the NSSO, which is the largest service, जहां से आप वो फिगर कोट कर रहे थे, हाउस होल्ड कंजम्पशन के जो फिगर्स आते हैं एनएसएसओ के राउंड से आते हैं. सो एनएसएसओ डज एवरी 5 years they do a big round in which they estimate the expenditure, which is a proxy for income. इंडिया में इनकम का कोई सर्वे नहीं होता, सिर्फ एक्सपेंडिचर सर्वे से इनकम को एस्टिमेट किया जाता है. 2011-12 में हुआ वो सर्वे, फिर 2017-18 में हुआ. सर्वे दिखाता था कि एक्चुअली इनकम देश की कम हो गई है. सर्वे खत्म कर दिया गया, सर्वे आया ही नहीं, और सरकार ने कहा इसमें सीरियस मेथोडोलॉजिकल फ्लॉज हैं. सारे स्टैटिस्टिशियंस ने कहा कोई फ्लॉ नहीं है, क्या कर रहे हो आप, जस्ट द सर्वे वाज किल्ड. अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के बारे में एक सीरीज थी,
वो सीरीज गलत रिजल्ट्स दे रही थी, गलत मतलब सरकार को पसंद नहीं थे, सीरीज खत्म कर दी गई। अब नई सीरीज आ गई है जो आपको बता रही है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ही नहीं है। So that's a serious thing. You see, when you, and it's not just me who's saying all these things. Arvind Subramaniam, who was chief economic advisor appointed by this government, not appointed by Congress. He was appointed by Mr. Jaitley, worked with him. He has written repeatedly to say our GDP figures have been fudged. Our GDP has been overestimated. इकोनॉमिस्ट हैं, इस सरकार के दुश्मन नहीं है और वो बार बार कह रहे हैं कि जीडीपी के फिगर्स हमारे रिलायबल नहीं है। अब आपका जीडीपी का फिगर रिलायबल नहीं है तो आप इकोनॉमी को कैसे चलाएंगे? सो दैट्स अ सेकंड सीरियस प्रॉब्लम दैट वी आर डीलिंग विद। बजट डज नॉट टेल अस अबाउट द रियल बजट। सरकारी फिगर्स डू नॉट टेल यू द ट्रूथ एंड दिस हैज बीन अ सीरियस प्रॉब्लम विद चाइना। चाइना के फिगर्स को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है क्योंकि सबको पता है कि सरकार ट्वीट करती है उन फिगर्स को। सो वी डू नॉट नो वेदर थिंग्स आर गेटिंग बेटर और वर्स। थर्ड थिंग दैट आई वांटेड टू से was about this thing called the middle class, something Mr. Chidambaram also mentioned. I've actually honestly never understood it. You tell me, Mr. Chidambaram gave some very good figures. What is a middle class? जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, मिडिल क्लास को, ग्रेट बजट फॉर द मिडिल क्लास एटसेट्रा एटसेट्रा। व्हाट इज मिडिल? मिडिल का मतलब मैं समझता हूँ दरमियाना, बीच में। Someone who has, someone who, if you have an income spectrum, someone who stands in the middle is the middle class, I would assume, है ना? मिडिल का मतलब यही होता है ना, मैं गलत तो नहीं समझ रहा, है ना? इकोनॉमिक्स में देखें तो उसको अगर स्टैटिस्टिकली हम ट्रांसलेट करें तो इट्स नॉट द मीन, इट्स द मीडियन। मीडियन इज द मिडिल क्लास। अगर इस देश के सबसे गरीब आदमी को, गरीब औरत को सबसे एक तरफ रखिए, सबसे अमीर को ऊपर रख दीजिए, तो एग्जैक्टली जो मिडिल में होगा या होगी वो मिडिल क्लास है इस देश का, ठीक है? एंड एज यू नो, मीन in a country like India, in most countries, in every country actually, mean would always be higher than median. Because mean may, hello? Because while calculating the mean of income, Mr. Ambani's income would also be counted. So he would count for a few crore people. वो अपने आप उसको weight हो जाएगा. Now look at the figures, Mr. Chidambaram. In urban India, mean income is less than, mean expenditure per capita expenditure is less than 7,000 rupees per capita per month. So a family of 4 or 5. So it's in a family of 4 as he said, it's about 28,000. जो एक महीने में 28,000 रुपया खर्च करती है फैमिली 4 लोगों की, वो इस देश की मीन फैमिली है, लेकिन मीडियन उससे काफी कम है। मीडियन, और ये अर्बन इंडिया का है। रूरल इंडिया का आप देखें तो रूरल इंडिया का उन्होंने बताया 4,000 रुपए से कम है। सो जो फैमिली एक महीने में 16,000 रुपया खर्च कर रही है, 5 लोगों की फैमिली होगी रूरल इंडिया में, 20,000 रुपए। जो 20,000 रुपया खर्च कर रहे हैं एक महीने का, जिस फैमिली की कैपेसिटी है 20,000 रुपए खर्च करने की, वो फैमिली मिडिल से ऊपर है क्योंकि मीन है ये। अब ये जो 1 लाख रुपया महीना में कमाने वाले लोग, आई एम श्योर आप सब वो बनना चाह रहे हैं और आप सबको शुभकामनाएं, आप सब बनेंगे और आप सब उसके बाद अपने आप को मिडिल महसूस करेंगे। लेकिन ये 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले कहां से मिडिल में आ गए, आप मुझे बताइए। आई कीप सेइंग इट्स इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। यू सी, द weird thing about this country is this. Please remember this. And this is irrespective of the budget, this budget or that budget or whatever. We have created a country where people from the 90th percentile to the 100th percentile have created a universe for themselves. जो 91st percentile पे होता है वो कहता है मैं तो मर ही गया, मतलब जिंदगी में अब बचा ही क्या है।
जो 94th परसेंटाइल पे होता है वो ऐसा महसूस करता है कि वो 40th परसेंटाइल पे है। जो 98th परसेंटाइल पे होता है वो कहता है काइंड ऑफ ठीक ही है, मतलब खाते पीते हैं बस, और क्या है जी इसके अलावा। वो 98th परसेंटाइल पे है, वो अपने आप को 80th परसेंटाइल पे महसूस करता है। और जो 99 परसेंटाइल पे है वो कहता है जी अमीर मुझे क्यों कहते हो, मेरे परिवार में कोई थे, उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग। मैंने कहा इतनी शर्म नहीं आती अपने आप को मिडिल क्लास कह रही हो तुम? मेरी बहनी थी, उसने कहा कमाल है, तू भी वैसे ऐसी बातें करता रहता है, बताओ हम हर साल को यूरोप जा पाते हैं छुट्टी के लिए? So she could not go every year to Europe to take a holiday. So she thought she was so utterly middle class. अब आप बताइए ये, so what we really created is a universe. 91st percentile feels like 10 percentile, 95th feels like 50th percentile, 99 feels like 90th percentile. और पूरी this has become this is a country by itself, and it's a large country. Top 10% of India would be bigger than Germany and Britain and possibly France put together. So we have created this country and everything in the economy is just about this class. और ये जो हैं, चिदम्बरम जी ने बोला कि इनकम टैक्स 3 करोड़ लोग पे करते हैं। So where would that person be? And incidentally वो सब पे नहीं करते हैं, वो फाइल करते हैं। पे तो बहुत कम लोग करते हैं उससे भी। So where would that person be? जिसको 1 लाख रुपया इनकम है महीने की, जिसके लिए सीतारमन जी को लगा कि नहीं इनके लिए तो कुछ कर देना चाहिए, इतनी गरीब, इतनी बुरी हालत है, कुछ तो इनको मिलना ही चाहिए ना। They would be possibly on the 96th or 97th percentile of this country. अब आप बताइए दुनिया में कोई देश हो, अपना देश को भूल जाइए, अपना देश तो बहुत अच्छा है, महान है, दुनिया का कोई देश हो जहां 96 97th परसेंटाइल पे रहने वाले आपको बोलें हाय हाय बहुत बर्डन है, बताइए सरकार हमें चूस रही है, हमें तो क्या मिल रहा है इस सरकार से, जैसी बातें आपको ड्राइंग रूम में सुनने को मिलती है, तो आप क्या कहेंगे? भाई साहब, बहन जी, थोड़ा पानी पियो, बैठो, थोड़ा घर से बाहर निकलो, थोड़ा तो देख लो कहाँ रह रहे हो। This is what I really want to say to everyone. What kind of a country have we developed where this class of tiny top 10% behaves as if they are the country, they own this country, and they have a language of we are the taxpayers, as if no one else is a taxpayer. I'm very happy that Mr. Chidambaram spoke about income and direct and indirect taxes, because what we are doing is we are increasingly getting into a regressive taxation regime. या आपने 1 लाख करोड़ रुपए की छूट दे दी। Now look at this big speech. इनकम टैक्स वालों को राहत, कितना नुकसान होगा? The finance minister herself says we are foregoing a tax of 1 lakh crore rupees. उस 1 लाख करोड़ से क्या क्या हो सकता था? उस 26,000 करोड़ रुपए से इस देश के सारे किसानों को MSP दी जा सकती है, 26,000 करोड़ रुपीस। अब सोचिए क्या क्या उस 1 लाख करोड़ से हो सकता है, जिसको यूं एक झटके में दे दिया। और अभी तो कुछ हुआ नहीं है, अभी 8th पे कमीशन और आने वाला है। आप सब जिन जिन नौकरियों के लिए एस्पायर कर रहे हैं और जाने के बाद आप सब कहेंगे हाई 7 से कैसे काम चलेगा, 8 तो कम से कम आना चाहिए। मतलब कैसा मुल्क बनाया है कि ये 2-3% पूरे देश पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और ऊपर से रोते और हैं कि हाई पूरा नहीं हुआ, अभी 7 से काम नहीं चलेगा और चढ़ाइए। एंड दिस इन ए सिचुएशन, डू यू नो व्हाट इज द सैलरी ऑफ ए आंगनबाड़ी वर्कर भारत सरकार की तरफ से? आशा वर्कर, मिड डे मील स्कीम वर्कर्स,
ASHA workers get 2,000 rupees a month plus incentives. So incentives add up to something like 90, it varies, 8 से 10,000 के रूप में उनको पैसा मिलता है. 8 to 10,000 rupees a month is what an ASHA worker makes. जिस पे आपका सारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके कंधों पे खड़ा है, उसको आप 8 से 10,000 रुपया देते हैं महीने का. और अगर आप भारत सरकार के क्लास 4 एम्प्लॉय के रूप में कल आपकी भर्ती हो जाए, आपकी ना हो मैं चाहता हूं, लेकिन अगर हो जाए तो पहले दिन आपको 35,000 रुपया मिलेगा. So, a regular employee of Government of India on day 1 will get 35,000 rupees, and once the pay commission comes, it will be like 45,000 rupees. This when you are giving your ASHA worker less than 10,000 rupees a month. आंगनबाड़ी वर्कर दो तरह के हैं, उनका मिक्स होके something like 5 to 6,000 rupees they get. इस पे आप अपने देश का भविष्य बना रहे हैं. आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर सब कुछ उस आंगनबाड़ी वर्कर के कंधे पे है. व्हाट अबाउट द मिड डे मील वर्कर? भारत सरकार कहती है ये पार्ट टाइम वर्कर है. पार्ट टाइम है क्योंकि दिन में 4-4.5 घंटे का काम होता है, 5 घंटे होता है. पता है भारत सरकार कितना देती है उनको? 1,000 rupees a month. मैं आज के रेट बता रहा हूं आपको. और ये सरकार आज के सिस्टम में अगर आप क्लास 4 एम्प्लॉय रिक्रूट होते हैं, जाके साहब को गिलास पानी का दे देंगे. जब एक दिन आप में से कुछ लोग उस बड़ी कुर्सी पे बैठेंगे, उस कुर्सी के पीछे सफेद तौलिया होगा, पता नहीं क्यों सफेद तौलिया होता है लेकिन होता है, और आपको कोई जब गिलास पानी का लेके आएगा तो उसको एक महीने में 45,000 रुपए मिला करेगा आपको पानी का गिलास पिलाने के लिए. और साहब लोगों को कितना मिलता है? इस वक्त भारत के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी को 4,70,000 रुपए मिलता है महीने का. और जब 8th पे कमीशन आ जाएगा उनको कोई 6.25 लाख रुपए पर मंथ मिला करेगा. हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में, एपार्थाइड के बारे में, हम बात करते हैं यूएस स्लेवरी के बारे में. जिस देश में हम जीते हैं उससे कोई अलग है क्या ये देश? सोचिए क्या है ये. वो साहब दिल्ली में बैठा हुआ कहता है कि 4,70,000 कम है, 6.25 हो जाए तो अच्छा होगा. और ये लोग मिड डे मील वर्कर को महीने का 1,000 रुपए देते हैं, आंगनबाड़ी को 4.5, आशा को 8-10,000 रुपए महीने का. और कोई कोशिश नहीं है उसे चेंज करने की. नहीं, फिस्कल प्रूडेंस, सारी फिस्कल प्रूडेंस गरीब के कंधों पे. और हमने अपने लिए एक पूरी दुनिया बना रखी है हम लोगों ने, जिसमें यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी शामिल हैं उस दुनिया में. खैर मैं कुछ जनरल बातें कहना चाह रहा था. अब मैं 5-10 मिनट में आपको एग्रीकल्चर के बारे में बता देता हूं. As I said, I don't have very much to say on agriculture, on the budget. I really seriously wish there was an economist. अगली बार आप करें किसी इकोनॉमिस्ट को लाइए जो आपको ठीक से बता सके, because people like me are not qualified. And then there's a question of serious question of economic policy and its overall direction, which is a very large question. Mr. Chidambaram said something about deregulation. I had some differences on that. So, and the question of very good question that you asked about inheritance tax and wealth tax. उसके बारे में भी मुझे लगता है एक चीज जरूर कह दूं मैं. I'm very happy that he spoke about inheritance tax. I wish it was used by the Congress government, which it was not. Wealth tax क्यों नहीं लग सकता? Yes, there are operational difficulties, I understand. पर अब देखिए, आज से 15 साल पहले आपकी इकोनॉमी बहुत कम डॉक्यूमेंटेड थी, आपके काफी चीजों का पता नहीं था. आज जबकि आपकी इकोनॉमी इतनी डॉक्यूमेंटेड है, आप सरकार खुद क्लेम करती है कि अब हमें सारे ट्रांजैक्शंस का पता है, आप चाय का पैसा भी देते हैं तो यूपीआई से देते हैं, which has led to formalization of our economy. Why do you then not know about wealth? It is possible. If there is a political will, yes, you can do it.
निर्मला सीतारामन जी ने 1 लाख करोड़ रुपए तो मिडिल क्लास को दे दिया। अब आपको पता लग गया ना, इसे मिडिल ऑफ नोवेयर क्लास, उसको दे दिया। 2 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाता है। इसको कहा जाता है टैक्स फॉरगॉन। टैक्स फॉरगॉन के 5-6 कैटेगरीज होते हैं। वन ऑफ द कैटेगरीज इज अबाउट कॉर्पोरेट टैक्स फॉरगॉन। एटलीस्ट 2 लाख करोड़ रुपया वो होता है। उन सब चीजों का क्या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? और अगर आप, और बार बार कह रहे हैं, दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, और अभी एक अच्छी रिपोर्ट भी आई थी और इसके बारे में एक सीरियस वो भी है, कैंपेन भी है, मैं उसका हिस्सा हूं। आप 8% वेल्थ टैक्स क्यों नहीं लगा सकते? ये अडानी और अंबानी A1 और A2 जो इस देश के हैं, उनकी वेल्थ कितनी है? अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली देयर इज अ मैगजीन कॉल्ड फोर्ब्स व्हिच एवरी मॉर्निंग gives you statistics on their wealth. So depending on which day we are looking at, their wealth is, in both their cases, their wealth is more than 10 lakh crore rupees. भारत सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल बजट इस साल का 50 लाख करोड़ रुपए का है, और A1 और A2 दोनों की जेब में 10-10 लाख करोड़ रुपए पड़े हैं, और आप कहते हो नहीं टैक्स नहीं कर सकते। These are not economic decisions. These are political decisions. These are political priorities. And it is a matter of political will. Yes, it will be very complicated. Yes. But you know, hundreds of complicated things. GST complicated नहीं है। कितना complicated है? जब political will थी, आपने किया उसे। अगर political will होगी, wealth को टैक्स करने के, शेयर मार्केट के गेन्स को टैक्स करने के 50 तरीके निकल आएंगे, मगर political will नहीं। All right, let me now just summarize in a capsule form what I know about agriculture part of the budget, in the hope that you would get someone else to speak about other parts of the budget. For our agriculture, the economic survey says agriculture is growing at a faster rate this year than the rest of the economy. It also acknowledges that more people have shifted to agriculture than before. ये हम भूल जाते हैं, because of COVID, a significant number of urban workers shifted back to rural areas. ये जो पैदल चल के 500 किलोमीटर गए थे लोग, significant, a small slice of that stayed back, never came back to urban areas. उसका रिजल्ट क्या हुआ कि एक घर में 2 एकड़ जमीन है, 3 भाई घर में थे, एक भाई बंबई गया हुआ था, वापस आ गया, उसी 2 एकड़ पे अब 4 लोग हैं, और पीरियोडिक लेबर फोर्स में अब 3 के बजाय 4 लोग एम्प्लॉयड हैं, चारों एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड कोई नहीं है ऑफिशियली, और वो 2 एकड़ जमीन पे अब 4 भाई एम्प्लॉयड हैं। सो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट द बर्डन ऑन एग्रीकल्चर हैज इंक्रीज्ड। एंड एज यू वुड नो, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स हमारे कभी भी बहुत ऊंचे नहीं होते, बिकॉज पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बी अनएम्प्लॉयड। इसलिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब वो गांव में जाएगा, उससे कहे क्या करते हो, कोई नहीं कहेगा मैं अनएम्प्लॉयड बैठा हूं। ये JNU का स्टूडेंट कह सकता है जो मुनीरका में बैठा है और बैठ के थोड़ा एग्जाम दे रहा है, 3 एग्जाम नहीं दिए। गाँव में कोई नहीं कह सकता मैं अनएम्प्लॉयड बैठा हूँ, वो कहता नहीं है, कर नहीं सकता। उसे जाके किसी दुकान में काम करना पड़ेगा, 500 रुपया, 1000, 2000 कुछ तो कमाएगा। So that is why our figures systematically depress and conceal unemployment. Okay. तो मैं एग्रीकल्चर पे बता रहा था, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट लोगों की पॉपुलेशन थोड़ा सा बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। Alright. So what should be done for agriculture? I'll give you 4 expectations, and these are not my expectations, these are from a parliamentary committee report. अभी नवंबर के महीने में पार्लियामेंट्री कमेटी है, और जैसा कि आप जानते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में सब पार्टीज के लोग होते हैं, और हर पार्लियामेंट्री कमेटी में रूलिंग कोalition की मेजॉरिटी होती है। जिस प्रोपोर्शन में पार्लियामेंट में होते हैं उसी प्रोपोर्शन में पार्लियामेंट्री कमेटी में होती है। सो दिस पार्लियामेंट्री कमेटी हेडेड बाय मिस्टर चरणजीत चन्नी फ्रॉम कांग्रेस, बट उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेजॉरिटी रूलिंग क्लास की। उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने 4 बातें कही, 4 recommendations of the parliamentary committee on agriculture,
उन चारों को मैं कहता हूं कि चलो दीज आर माई बेसिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द बजट। ठीक बात है ना, इट्स रीजनेबल थिंग। फर्स्ट दे सेड MSP should be given a legal status. For the first time in our history, a parliamentary committee has said that MSP को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। Number two, they said that PM Nidhi, Kisan Nidhi, which is 6,000 rupees a year. The government of India gives 6,000 rupees to every farming household per year. उन्होंने कहा ये आपने 2018 में तय किया था, 6 साल हो गए हैं, इन्फ्लेशन हुआ है, पार्लियामेंटेरियंस का भत्ता भी बढ़ जाता है, टीचर्स का भी डियरनेस अलाउंस बढ़ता है, सबका बढ़ता है ना, तो उनका इनका थोड़ा सा तो दे डिड नॉट इवन से समथिंग एज करेजियस एज दिस कि इसको इन्फ्लेशन लिंक कर दो। उन्होंने कहा थोड़ा सा बढ़ा दो इसे, because 6,000 has by virtue of inflation come down to something like 4,000 now. That's a second expectation. Third expectation, they said, was that farmers are under enormous stress of loan. A system should be devised to reduce the burden of loan. For an average farming household, the loan is about 91,000 rupees in India. That's the current situation. And the fourth thing was कि Prime Minister Fasal Bima Yojana, which is the largest insurance scheme for agriculture, it should be revamped because over the years this scheme has been going down. So I would expect these four things from the budget. Budget is being presented in a parliament where parliamentary committee has said these four things should be done. Let's look at just these four things and you'll see what's happening in the budget. One, MSP legal guarantee. Finance Minister did not use the word MSP in her speech. There are schemes. There's a scheme called ASHA, which is about procuring and ensuring that farmers get their MSP. The scheme has a tiny budget. The budget remained unchanged. The finance minister made just one announcement. उन्होंने कहा कि 3 दाल हैं, उड़द, तूर और मसूर। इन तीनों दाल की हम खरीद करेंगे। खरीद करेंगे का मतलब होता है कि आप MSP रेट पे खरीद करेंगे, क्योंकि सरकार उससे नीचे पे खरीद नहीं सकती। Why was that made? That is not for the sake of farmers. That is because our import burden has become so much. In pulses, हमारा दाल का इंपोर्ट इतना ज्यादा हो गया है, जिम्बाब्वे से, कनाडा से हम दाल इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे सरकार को बड़ी परेशानी हो रही है। तो सरकार ने अपनी परेशानी कम करने के लिए किसान को कहा कि अच्छा 3 दाल का तो हम परचेज कर लेंगे। और कहा कि हम एक दाल के लिए मिशन अनाउंस करेंगे। अच्छी बात है, मुझे तो मिशन अच्छे ही लगते हैं, पर मुझे दिमाग में थोड़ा सा खटका, मुझे लगा ये तो बात सुनी भी लग रही है। मैं बताया ना 11 साल से मैं बजट को फॉलो कर रहा हूँ। आई वेंट बैक, लास्ट ईयर ऑल्सो दे हैड मेड एग्जैक्टली द सेम अनाउंसमेंट, दाल मिशन, पल्सेस के लिए मिशन। और मैंने देखा पिछले साल क्या प्रोक्योरमेंट था इन तीनों दालों का, कितना था? 0%। 0% प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल दीज। इस सरकार प्रोक्योरमेंट की बातें करती है ना, सारा प्रोक्योरमेंट सिर्फ गेहूं और चावल धान का होता है, बाकी किसी का 1%, 1.5%, 2%। इन दोनों का, इन तीनों दालों का 0%। पिछले साल भी दाल मिशन अनाउंस हुआ था। सो दैट्स योर MSP। सेकेंड, प्राइम मिनिस्टर सम्मान निधि, नो डिक्लेरेशन व्हाटसोएवर। मिडिल क्लास को करना था ना, मिडिल क्लास तो देखिए, अब सिंपल अरिथमेटिक आप कर लीजिए, ये कोई 10 करोड़ फैमिलीज को जाता है, 10 करोड़ किसानों को साल में 6,000 रुपए जाता है। तो अगर सरकार 1 लाख करोड़ रुपया जो मिडिल क्लास के लिए दिया, वो अगर इन किसानों को देना चाहती तो कितना कर सकते थे?
हर परिवार को आप 10,000 रुपए दे सकते थे। Am I getting my mathematics right? 10 करोड़ फैमिलीज को जाता है, 9 करोड़ समथिंग को जाता है। 10 करोड़ फैमिलीज को आप 10,000 रुपया सालाना दे देते तो आपका 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होता। उन लोगों को जिनकी एवरेज इनकम सरकार के हिसाब से 10,000 रुपया महीना है, इस देश के एग्रीकल्चर फार्मिंग हाउसहोल्ड्स की इनकम इस वक्त 10,000 रुपया पर मंथ, उनको आप 10,000 रुपए एनुअल दे सकते थे। जो आप 6,000 रुपए दे रहे हो, 6 को 16,000 कर सकते थे आप। लेकिन मिडिल क्लास को देखना था ना, दिल्ली का इलेक्शन आ रहा था, काफी काम थे, काफी कुछ वो था। दिल्ली के इलेक्शन पे एक बात मैं कह दूं आपको, जिस दिन दिल्ली का इलेक्शन अनाउंस हुआ 4 फरवरी को, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों ने पूछा, सर 4 फरवरी को आप दिल्ली का इलेक्शन रख रहे हैं, 1 फरवरी को बजट पेश होता है देश में, बजट से असर तो नहीं होगा कहीं पे? हमारे सीईसी बहुत सुंदर शेरो शायरी करते हैं। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं होता, मतलब इससे मैं इंस्ट्रक्शन इशू करूंगा, मैं कैबिनेट सेक्रेटरी को कहूंगा कि बजट में दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर बजट में मिडिल क्लास के लिए था। अब आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं था, तो बीजेपी वालों ने सुविधा कर दी, आपके लिए कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उन्होंने अगले दिन एडवर्टाइजमेंट इशू किया, बजट में दिल्ली के लिए मोदी जी का तोहफा। व्हाट इज द इलेक्शन कमीशन डूइंग? और परसों जब इलेक्शन का एनालिसिस हो रहा था तो बीजेपी के पक्ष में बोलने वाले हैं रजत सेठी, टीवी पे बोलते हैं, सो उन्होंने कहा हाउ ब्यूटीफुली टाइम्ड, हाउ ब्यूटीफुली सिंक्रोनाइज्ड इट इज, एज इफ एट द कंप्लीट यू टेक इट टू द, क्या कहते हैं, यू टेक इट टू ए हाइट। और एग्जैक्टली इलेक्शन से 3 दिन पहले निर्मला सीतारामन ने कितना खूबसूरत अनाउंसमेंट किया, बिल्कुल आप उसको क्रेसेंडो पे ले जाके अनाउंसमेंट किया। मैंने कहा भैया 1 मिनट ठहरना, ये डेट उन्होंने तय नहीं की थी, ये डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तय की थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तय किया था कि जब दिल्ली इलेक्शन अपने क्रेसेंडो पे होगा तब यूनियन बजट अनाउंस किया जाएगा। ये सब हुआ है। Anyway, I've mentioned 2 things. Third was about loans. कि लोन का बर्डन बहुत ज्यादा है, and farmers organizations have been demanding over the years that we need a mechanism through which loans can be addressed. लोन का बर्डन कम किया जा सके, इसका कोई परमानेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। बीच बीच में 10 साल में एक बार लोन माफी कर दी, वो नहीं चाहिए हमें इसका एक रेगुलर मैकेनिज्म चाहिए। Nothing of that sort. The only announcement is that Kisan Credit Card, which is a way for farmers to get their loan, उसकी लिमिट 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी। हमारे दोस्तों ने कहा लीजिए, तो लोन उन्होंने बढ़ा दिया। मैंने कहा नहीं, देखिए फायदा तो होता है इससे किसान को 3 की बजाय 5 लाख का लोन मिल सकता है, ठीक बात है, फेयर। So you are willing to increase the loan that's available to the farmers. And the beauty of this loan is that इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडाइज करती है। 7% और 4% का जो गैप होता है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडाइज करती है। तो मैंने स्पीच सुनी, उसके बाद मेरी जो खराब आदत है, उसके बाद मैंने टेबल देखी कि भाई अगर आपने 3 लाख से 5 लाख कर दिया है तो आपका सब्सिडी का एक्सपेंडिचर तो बढ़ा होगा ना? बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो 3 से 5 लाख लोन भी हो गया, किसानों को लोन ज्यादा मिल भी जाएगा, सरकार की जेब से 1 पैसा भी फालतू खर्च नहीं होगा। ये जादू कैसे होगा मुझे तो अब तक पता नहीं है, आपको पता हो तो मुझे बता देना। And this is fudging, this is serious fudging in a budget. झूठ बोल रहे हो आप देश के साथ। बाद में कहेंगे, या तो कहेंगे कि पैसा एग्जॉस्ट हो गया, या कहेंगे कि हाँ आपको 5 लाख मिल सकता है बशर्ते कि आप ये 17 डॉक्यूमेंट लेके आए। ना 17 डॉक्यूमेंट होंगे ना 5 लाख का लोन मिलेगा आपको कभी भी। ऐसा ही कुछ करना होगा, नहीं तो कहां से इतने पैसे में कैसे होगा। एंड द 4th थिंग वाज प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना में जब मोदी जी ने पहली बार अनाउंस की, क्योंकि मोदी जी की हर घोषणा ऐतिहासिक होती है, उससे कम होता नहीं है, तो उन्होंने पहली बार जब कहा तो उन्होंने कहा कि अब तक जितनी भी फसल बीमा योजना थी वो अच्छी नहीं थी। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये बात उनकी सच थी।
उन्होंने कहा अब तक सिर्फ 23% कवरेज है फसल बीमा योजना का, ये तो कोई अच्छी योजना नहीं है। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। उन्होंने कहा अब हम लेके आए हैं प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर का नाम जुड़ गया तो अब चीजें ऊपर जाएंगी। सो ही सेड दैट इन फर्स्ट ईयर विल टेक इट फ्रॉम 23 to 30 कवरेज, सेकेंड ईयर विल टेक इट फ्रॉम 30 to 50 और उसके बाद हम यूनिवर्सल कवरेज करेंगे। लवली। पहले साल 23 का 26 हुआ, दूसरे साल 26 का 28 हुआ, तीसरे साल 28 का 22 हुआ, फिर 22 से 16 हो गया। दिस इज द ग्रैंड अचीवमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, that it covers much less farmers today than it used to do when the scheme began. But that's not the end of it. The lovely achievement is that our expenditure has gone up 3 times. So less farmers are benefiting, more money is being spent. Who's benefiting? Private insurance companies. This is the name of the game. So there was an expectation, there was the idea that this scheme should be revamped. Nirmala ji revamped it. She said last year we had spent 15,300 crore rupees on this scheme. This year we'll spend only 12,000 crore rupees on it. ये उनकी उपलब्धि है, 3,000 करोड़ रुपए कम कर दिए स्कीम के ऊपर। This is where we stand. I mean, I can go on and on. I'll just give you one more instance and then probably stop. What is the overall expenditure on agriculture in this country as a part of the budget? पहले 4% के करीब हुआ करता था, मगर जिस साल ये सब पीएम सम्मान निधि इंट्रोड्यूस की 2018 में, then for the first time the budget jumped up, and in the history of India for the first time more than 5% was spent on agriculture. This was unprecedented because of that one item. उसके बाद से every year it's coming down. From पिछले 5 साल में every year the expenditure on agriculture and animal husbandry and the allied departments, पहले 5 था, फिर 4.86 हुआ, फिर 4.2 हुआ, उसके बाद 3.7 हुआ, 3.11, इस साल 3.06 हो गया। So 4 engines of growth. Agriculture is my first engine. इंजन में ईंधन नहीं है, ईंधन पहले से कम दे देंगे, डायलॉग पहले से ज्यादा हो जाएंगे। सो मैं बार बार कहता हूँ डायलॉग थोड़े कम दे दीजिए, इतनी सुंदर पोइट्री मत कीजिए, पैसा दे दीजिए ना बजट पे। बजट को मैं डायलॉग सुनने के लिए नहीं रखता हूँ, बाकी मैं स्पीच तो बहुत बाद में सुन ही लूंगा बाहर जाके कहीं भी। I look at the budget for figures. I want sums allocated. That doesn't exist, everything else does. And the trouble, as Mr. Chidambaram said, is not merely that the allocation is going down. जो allot होता है वो खर्च नहीं होता, और जो पहले announcements की जाती, 5 years ago Nirmala Sitharaman had made a grand announcement. Agri Infra Fund, 1 lakh crore rupees will be set aside for Agri Infra Fund for the next 5 years. Problem बीजेपी के साथ ये होती है कि वो जिस चीज की लिमिट बताते हैं एक दिन वो दिन आ ही जाता है, 5 साल खत्म हो गए, अब उसके बाद आप देखोगे अब कितना हुआ, 1 लाख का आपने प्रॉमिस किया था। So far 37,000 crores have been allocated, not spent. 37% has been allocated. पिछले साल उन्होंने लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने का नेशनल मिशन डिक्लेयर किया था, कहा था वो 100% कर देंगे। व्हाट्स द अचीवमेंट? 9% so far. सरकार ने कहा था कि एक नई कोऑपरेटिव पॉलिसी लेके आ रहे हैं। एक और चीज, इतनी अनाउंसमेंट्स होती हैं इस साल का, क्योंकि देयर इज एन आउटकम बजट दीस डेज। दैट्स अ वेरी नाइस थिंग अबाउट द करंट बजट्स दीस डेज। फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स देयर इज एन आउटकम बजट। पिछले साल क्या क्या डिक्लेरेशंस किए गए थे और उनमें क्या हुआ उसको हमने देख लिया। So the 2 big schemes which were announced with such fanfare last year, one was about fruits and vegetables, the other was about cooperative. Both these schemes are yet to start. 1 साल हो गया है, स्कीम स्टार्ट नहीं हुई है, तालियां पिट गई थी पिछली बार, इस बार नई चीज पे तालियां पिटवा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, वो हो गया, जो हुआ सो हुआ, अब आगे चलो, आगे देखो। This keeps happening year after year after year, because we are looking at a regime, and I'll stop with this one thing.
we are looking at a change in our economic policies. I must say, Mr. Chidambaram is not here. If he was, I would have actually said that I'm no admirer of economic policies during his regime. मगर अब जो हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही कुछ नई चीज है. You see, when we were studying, I was a student here in 1981-83 in CPS. In those days, we used to study. State was an agency of the bourgeoisie. मार्क्सिज्म का जमाना था, पढ़ते थे, और मुझे लगता था कि नहीं यार, ऐसी एजेंसी तो नहीं दिख रही मेरे को आंख के सामने. So the funny thing was that when we were taught and we believed that state was an agency of the bourgeoisie, state was actually not an agency of the bourgeoisie then. Bourgeoisie had an enormous influence, मगर relative autonomy थी. And the trouble is कि जब when the state has become an agency of the bourgeoisie, we've stopped using that language. जब language थी तब reality नहीं थी, जब reality हो गई है तो language चली गई है. What else is it? A1 and A2's interests run this country. This is an state as an agency of the bourgeoisie. सीधे चुने हुए पूरी कैपिटलिस्ट क्लास के लिए भी नहीं, कुछ इन्हें गिने कैपिटलिस्ट के लिए पूरे देश को चलाया जा रहा है उनके इंटरेस्ट में. प्राइम मिनिस्टर विदेश जाते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, एक कॉर्पोरेट हाउस की सिफारिश करने के लिए. एंड ऑल दैट हैज कम आउट. इंडिया में तो आता नहीं है, हमारी अच्छी खबरें बाहर से ही आती हैं. The Sri Lankan parliamentary inquiry, when after the regime change in Sri Lanka, they asked the electricity board chairman, how come you gave this contract to some Adani from India? He said, I got a call from president's office. And president told me, that is to say Sri Lanka's president told the Sri Lankan electricity board chairman that this contract has to go to Mr. Adani because Mr. Modi rang me up for that. This is on parliamentary records of Sri Lanka. ये हो रहा है इस वक्त देश में. We have had a problem of unfavorable terms of trade for agriculture. That's not new. It's a very long-term phenomenon. But what we are now witnessing is something completely different. And therefore, my friends, I'll end by saying, these are not economic questions. These are political questions. ये किसका देश है, किसके लिए चलता है, कौन इस देश का है, कौन मालिक है, कौन इस देश में अपनी बात मनवा सकता है, किसका इंटरेस्ट सबसे पहले आएगा इस देश में, किसका इंटरेस्ट सबसे बाद में आएगा. ये पॉलिटिकल सवाल है, ये इकोनॉमिक सवाल नहीं है. और इन सवालों का जवाब तभी भी हो सकता है जब उन लोगों को इकट्ठा किया जाए. ये जो आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर, ये दोनों को जोड़ दिया जाए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉयज से ज्यादा नंबर है आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स का, सिर्फ इस दो कैटेगरी का. ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पुट टुगेदर आर स्मॉलर देन दिस टू कैटेगरी. जिस दिन इनकी यूनियन खड़ी होके कहेगी तुम होते कौन हो ये करने वाले, देश हम चला रहे हैं और तुम इनको दे रहे हो सब कुछ, that's when things change. So questions of economy are in the last instance questions of politics. I'm so happy that we are meeting in this campus, a campus that has a long tradition of political activism of the students. क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो फिर वही लोग पॉलिटिक्स करेंगे जिसके पापा जी भी पॉलिटिक्स करते थे, जिसके पास प्रॉपर्टी का धंधा करने के बाद इतना पैसा आ गया है कि उसको लगता है अब और क्या करें, चलो सफेद जूता पहन लेते हैं, कुर्ता पजामा पहन लेते हैं, आगे बाहर निकलते हैं, है ना. These are political questions and I'm very sure all of you would take these up. These are questions of political mobilization, and what we need in this country is a political unity of the bottom of the pyramid. That is the way forward. And I do hope that all of you, no matter what your label today, no matter what those labels are, I like all those labels, I must say. There is one that I don't like, but I like all these labels. And so whatever the label, I'm sure all of us would come together to create a political unity of the bottom of the social pyramid. Thank you very much.
बहुत बहुत